I would request you to revise from here. This is the brain, the structure of brain. Okay, and can you tell me why I am showing you the structure of brain? क्यों मैं ये इमेज दिखा रही हूँ ब्रेन का जबकि हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं? तो anyone, why I am showing you the structure of brain? Children, can you unmute and speak? Abhishek, can you hear me? Unmute yourself. Arya Sawant, mute yourself. Manish Moria, mute yourself. Mute yourself. I request everyone to mute yourself. Yes, Pawar, unmute yourself. Yes, Pawar. Yes, Pawar, can you hear me? Yes, ma'am. हाँ बेटा, ये ब्रेन का डायग्राम क्यों दिखा रही बच्चा में? Why am I showing you the diagram of brain? Due to as the brain controls the Carry on, no problem. So it controls breathing. So is the entire brain responsible for controlling breathing, beta? No, ma'am. So कौन सा part बेटा brain में? Ma'am, the medulla and medulla and pons. Okay, thank you, child. So he said it very correct. I am showing you the image of brain because the regulation of the breathing or the respiratory center is present in the brain. अब तुमको पता होना चाहिए हमारा respiratory center जो है वो किधर present है? Okay, it is present in the pons and the medulla. ठीक है? तो हमारा जो steady rate of respiration है, it is controlled by the neurons located in pons and medulla, and we call it as what? Respiratory center. Basically, ये respiratory center क्या control करता है? The depth and the rate of breathing. So we will learn about it. That the respiration is under dual control. One is nervous and the another one is endocrine, that is chemical. Of course, normal breathing is an involuntary process, but the steady rate of respiration is controlled by neurons located in the pons and medulla. तो ये जो पर्टिकुलर pons और medulla है, हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट. Okay. Now, there are respiratory centers can be differentiated as three. Am I audible? Hello. Yes, ma'am. Inspiratory center, dorsal group of neurons in the medulla. Inspiratory and expiratory center, ventrolateral group of neurons in medulla. Okay. Inspiratory and expiratory center, ventrolateral group of neurons in medulla. Pneumotaxic center जो है वो किधर है? pons में. So it limits inspiration, rapid eye movement, sleep and slow wave speed. Apneutic center जो है, okay, ये medulla में है, medulla oblongata में है, and it works opposite. Antagonistic का मतलब होता है opposite. It works opposite to the pneumotaxic center. It controls the non-rapid eye movement, sleep and wakefulness. Okay? Is it clear till here? यहाँ तक समझा सबको? याद आया? Okay. So very quickly I am going to ask something. Can you children, any one of you tell me where is the respiratory center present in the body? Where is the respiratory center present in the body? Where is the respiratory? कोई भी unmute करके बोल सकता है. क्या अनम्यूट हो नहीं सकते हो? Give me a minute. Let me find who has raised the hand. I cannot see. Yes, Janvi Tiwari. Medulla and pons. Medulla and pons. Very good. So you must say that the steady rate of respiration is controlled by the neurons present in medulla and pons.
Can anyone tell me the respiratory centers? Name the respiratory centers, different respiratory centers that are present. Inspiratory center. Chaudhary? Yes, Pawan, you can, please. Inspiratory center, inspiratory and expiratory center, pneumotaxic center, apneustic center. Okay, so apneustic center works opposite to the inspiratory, expiratory, and apneustic center works antagonistic to the pneumotaxic center. Chaudhary, I have unmuted you. You were absent in the morning, beta. यस मैम, वो लाइट नहीं थी और मोबाइल स्विच ऑफ था। अच्छा ठीक है। Can you hear yourself? Kunal Shinde, can you hear me? Kunal Shinde, unmute yourself. Okay. So during sorry. Can you hear me now? Yes. Can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. बच्चे लोग ये ध्यान से सुनो। हम जब सांस अंदर लेते हैं, इंस्पिरेशन, ठीक है, when we take the air inside, name the part of the respiratory tract through which the air enters inside our body. Name the part of respiratory tract through which the air enters inside our body. Opening. Name the openings through which the air enters inside our body. Hello. Okay, no. External nail. Okay, the air enters inside our body through external nail. So when we are performing inhalation, अपने को मालूम है lungs जो है वो एक हद तक ही expand हो सकता है. Okay, there is a saturation point for the lungs to expand. Okay, और यहाँ पे हमारे stretch receptors present है. क्या present है? Stretch receptors. क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेच, खींचता है ना, उसको इंग्लिश में स्ट्रेच बोलते हैं. आई विल राइट इट डाउन हियर. स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स. तो ये लोग स्टिम्युलेट होते हैं और ये लोग इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं. इम्पल्स मतलब मैसेज. So when we perform inhalation, the lungs can expand only to a critical point, okay, to its maximum. At that time, the stretch receptors are stimulated and the impulses are sent along the vagus nerve. कौन सा नर्व? वेगस नर्व. ये ना क्रेनियल नर्व है. क्रेनियल नर्व है और ये कौन सा क्रेनियल नर्व है? 10th क्रेनियल नर्व है. ये क्रेनियल नर्व है और ये कौन सा क्रेनियल नर्व है? 10th क्रेनियल नर्व है. ओके, तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव. ये स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो रिसीव कर रहे हैं. ओके, सो दिस स्ट्रेच रिसेप्टर्स दे गेट स्टिम्युलेटेड एंड दे रिसीव, ओके, द स्टिम्युलस एंड दे प्रोड्यूस व्हाट? इंपल्सेस. इंपल्सेस मतलब मैसेज. और ये मैसेज जो है कौन लेके जाता है? वेगस नर्व लेके जाता है. किधर लेके जाता है? टू द एक्सपिरेटरी सेंटर. किधर लेके जाता है? एक्सपिरेटरी सेंटर के पास. किधर है हमारा एक्सपिरेटरी सेंटर? इट्स द वेंट्रोलैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन मेड्यूला. ठीक है, अब वहां पे क्या होगा? ये एक्सपिरेटरी सेंटर अभी क्या प्रोड्यूस करेगा? इनहिबिटरी इंपल्स टू द इंस्पिरेटरी सेंटर. इनहिबिटरी मतलब कम करो. किसको उसने ये इंपल्स सेंड किया? ये मैसेज किसको सेंड किया? क्या कम करो? इनहलेशन कम करो. ठीक है, किसको सेंड किया? इंस्पिरेटरी सेंटर को सेंड. बच्चे लोग, जब हम सांस लेते हैं और हमारा लंग एक हद तक ही फूल सकता है, उसके ऊपर फूलेगा, फट जाएगा. तो वो अगर तुमने वो हद तक अपना लंग फुला लिया तो क्या होगा? ये रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है, ओके, उन लोग स्टिम्युलेट हो जाएंगे. उन लोग क्या हो जाएंगे? स्टिम्युलेट हो जाएंगे और उन लोग क्या तैयार करेंगे? मैसेज, इंपल्स. तो ये इंपल्स
ये ना रिसेप्टर्स लंग्स में है, तो ये इम्पल्स कौन लेके जाएगा, ये कौन लेके जाएगा, लेके कौन जाता है, वेगस नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व है। किधर लेके जा रहा है, एक्सपिरेटरी सेंटर में, ओके, जो कि मेड्यूला में। अब ये एक्सपिरेटरी सेंटर जो है वो आंसर देगा कि भाई कम करो, कम करो, इनहिबिट, क्या कम करो, ओके। और किसको भेजा जा रहा है, इंस्पिरेटरी सेंटर को भेजा जा रहा है। तो क्या कम करने की बात कर रहे हैं, इनहलेशन, ओके। तो इंस्पिरेटरी मसल्स जो होते हैं, यहाँ पे जो मसल्स है, इंस्पिरेटरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन के बाद इज फॉलोड बाय एक्सहलेशन। समझा मैंने क्या बोला, समझा, हाँ नहीं तो बोलो, मैंने क्या भाषण दिया, समझा क्या, कोई मैम। सुन रहा है मुझे, मैं पूरा ऑनलाइन लेक्चर में लग रहा है मैं मंगल ग्रह में बैठ के बात कर रही हूँ, कोई सुन रहा है मुझे, यस मैम। हाँ थैंक यू। अच्छा, इनहलेशन किए, इनहलेशन किए ना, तो क्या एक्सपैंड होगा, क्या खुलेगा, मेरे प्रिय बच्चों, जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहलेशन करते हैं, तो क्या खुलेगा, व्हाट विल एक्सपैंड, लंग्स। लंग्स एक्सपैंड हुआ, मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट तक एक्सपैंड हुआ। अगर लंग्स को तुम मैक्सिमम पॉइंट पे एक्सपैंड करोगे तो कौन स्टिम्युलेट होगा, कौन स्टिम्युलेट होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर, और वो क्या तैयार करेगा, अभी मेरी आवाज तुम्हारे लिए स्टिम्युलस है, तो तुम लोग बदले में क्या कर रहे हो, जवाब दे रहे हो ना, तो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैसेज। मैसेज, ओके। उसका बायोलॉजिकल टर्म क्या है बेटा मैसेज के लिए, वो तो तुमको समझाने के लिए, इम्पल्स। अब ये इम्पल्स कौन सा नर्व लेके जाएगा, वेगस नर्व। वेगस नर्व, कितवा नर्व है ये, वेगस नर्व कितवा नर्व है, 10th cranial nerve. किसके पास लेके जाएगा वेगस नर्व ये मैसेज, इम्पल्स, Expiratory center. एक्सपिरेटरी सेंटर किधर प्रेजेंट है, Ventrolateral group of neurons in medulla. इन मेड्यूला, ओके। अब वहां पे क्या होगा, वो इम्पल्स, ये भी इम्पल्स तैयार करेगा और किसके पास भेजेगा, एक्सपिरेटरी सेंटर इम्पल्स तैयार करके किसके पास भेजेगा, इंस्पिरेटरी सेंटर। तो इससे क्या होगा, इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और क्या होगा, एक्सपिरेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंस्पिरेटरी सेंटर के पास मैसेज इम्पल्स पहुंचता है तो इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और बाद में उसके बाद क्या होगा, एक्सपिरेशन। So as air leaves the lungs during expiration, the lungs are deflated. फुग्गा है ना बलून, उसको इमेजिन करो, ओके। तुमने फुग्गे के अंदर हवा भर दिया, वो इनहलेशन है, हवा एकदम से भर दिया, सोचो तुमने बहुत हवा भर दिया, या तो वो फट जाएगा या तो क्या करेगा, वो पूरा हवा बाहर छोड़ देगा। उसी तरह से जब ये हमारे लंग्स से हवा बाहर निकलता है तो हम बोलते हैं लंग्स गेट डिफ्लेटेड, डिफ्लेटेड। जैसे ही लंग्स डिफ्लेट होगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेट नहीं होंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या नहीं होंगे, स्टिम्युलेट नहीं होंगे। अब इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करने की जरूरत नहीं है, अब नया रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही एक्सहलेशन करोगे तो स्ट्रेच रिसेप्टर अब नहीं काम करेगा, अब फिर नया ब्रीदिंग शुरू हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ना बच्चे लोग, ये जो इतना मैंने बोला, तुमने सांस अंदर ली, लंग्स एक्सपैंड हुआ, लंग्स एक्सपैंड होगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो स्टिम्युलेट होगा एंड इट विल जनरेट इम्पल्स। हु विल कैरी दिस इम्पल्स, वेगस नर्व। क्या है वेगस नर्व, cranial नर्व। वेगस नर्व ये इम्पल्स किसके पास लेके जाएगा, एक्सपिरेटरी सेंटर के पास। एक्सपिरेटरी सेंटर इम्पल्स तैयार किया और किसको दिया, इंस्पिरेटरी सेंटर। जैसे ही इम्पल्स इंस्पिरेटरी सेंटर को मिला, इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और एक्सहलेशन होगा। जैसे ही एक्सहलेशन होगा स्ट्रेच रिसेप्टर शांत हो जाएंगे, आराम करेंगे, ठीक है, समझा। ये इवेंट जो हो रहा है इसको हम बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स।
इवेंट को क्या बोला जाएगा? हेरिंग। दो साइंटिस्ट लोग ने मिलकर ढूंढा था। इसके लिए एक का सरनेम हेरिंग था, दूसरे का सरनेम था ब्रूअर। ओके, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं? हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। इतना ठीक है? इतना समझा? हेलो? Yes, ma'am. हाँ, कोई मुझे ये महाभारत वापिस से बोलेगा? कोई मुझे ये महाभारत फिर से बोलेगा? मुझे ना इससे गुस्सा आता है। मतलब मैं अपना पूरा गला, मैं अपना लैरिंग्स, अपना लंग सब कुछ यूटिलाइज कर रही हूँ, दिमाग का तो छोड़ दो, और तुम लोग ऐसा रिस्पॉन्स देते हो। कौन है वो? मिस चौधरी। जस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू पीपल डोंट हैव दैट फायर टू आंसर। मिस चौधरी, आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट यू। गिव अ मिनट। Miss Chaudhary, can you speak? Just try to speak. Anyone who can answer? I'm not able to hear anyone. Can anyone else speak something? I just want to know whether I am suffering from internet issue. कोई दूसरा बात करेगा? हाँ, तो मेरा इंटरनेट इशू नहीं है, शायद वो बच्चे का इंटरनेट इशू है, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कोई बोलेगा मुझे ये पूरा महाभारत? ओके, आई टेल यू वंस मोर, ध्यान रखो, सुनो। ओके, लिसन टू मी केयरफुली। ड्यूरिंग इनहलेशन the lungs expand to its critical point. Stretch receptors are हेलो मैम। हेलो मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट, हाँ, अब सुनाई दे रहा है? हेलो Ma'am, यस clear मैम, अभी आ आपकी रहा है। voice. अभी सुनाई अभी दे रहा है? बराबर। यस मैम। Okay, okay. Yeah. So I was telling that during inhalation, okay, the lung expands to its critical point. Stretch receptors are stimulated and it produces impulse. Impulse is carried by vagus nerve, 10th cranial nerve. It carries the impulse to the expiratory center. Expiratory center sends out, okay, inhibitory impulse to inhibitory मतलब कम करो, रोको, inhibitory impulse to inspiratory center. Inspiratory muscles relax and expiration follows. When exhalation takes place, flesh receptors do not respond. Now, due respiration starts. This event is known as Hering-Breuer reflex. Okay? अब कौन बोलेगा? Important है ये Hering-Breuer reflex. Ma'am, can I? Yes, sure. During inhalation, lungs expands to its maximum point. Stretch receptors stimulates impulse by vagus nerve. Vagus nerve is the 10th cranial nerve to expiratory center. This expiratory centers sends out the inhibitory impulse to the inspiratory center. Inspiratory centers sends a message to the inspiratory muscle. Inspiratory center gives message and inspiratory muscles relaxes. Then expiration takes place. Due to expiration, exhalation takes place. Stretch receptors get stop responding, and the new respiration starts. Very nice. अभी बच्चे लोग, ये हेरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स जो है, इसका कुछ फायदा है क्या? इसके नहीं होने से कुछ फर्क पड़ेगा या इसका होना जरूरी है? इज देयर एनी रीजन? ये हेरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स जो है, इससे कुछ फायदा है हमको? सोचो, अगर ये हेरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स नहीं होता तो क्या होता? मैम, लंग्स ब्लास्ट हो सकते हैं। गुड तिवारी, लंग्स ब्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली ये हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स जो है ये कंट्रोल करता है हमारा डेप्थ एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंस क्या है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स का? इट कंट्रोल्स द डेप्थ एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। ओवर मतलब ज्यादा इन्फ्लेमेशन, सॉरी इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फ्लेशन, ज्यादा लंग्स ना फूले, इसका ध्यान रहेगा, ओके। So this was hearing brewer reflex. I hope it is clear to everyone. Anyone needs that I should repeat this hearing brewer reflex? Yes, Miss Chaudhary. यस मैम, एक बार आप रिपीट करें ना। हाँ बेटा, हिंदी में करूँ इंग्लिश में करूँ? कैसा भी करो मैम, चलेगा। ओके, मैं दोनों में कर देती हूँ, ठीक है। पहले जब हम सांस अंदर लेते मैम। हैं तो हमारा लंग्स क्या होगा? एक्सपैंड, हमारा लंग्स खुल जाएगा। तो लंग्स जब खुल जाता है तो उसके अंदर सेल्स है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिम्युलेट हो गए और वो क्या बनाएगा? इम्पल्स तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? इम्पल्स। और ये इम्पल्स जो है, इम्पल्स मतलब मैसेज, ये कौन लेके जाता है? वेगस नर्व। वेगस नर्व कौन सा नर्व है? 10th क्रेनियल नर्व है। ये इम्पल्स किधर लेके जा रहा है? एक्सपिरेटरी सेंटर में। तो एक्सपिरेटरी सेंटर में इम्पल्स पहुंच गया तो अभी क्या तैयार हो, वो क्या करेगा? इनहिबिटरी इम्पल्स, इनहिबिटरी इम्पल्स, ठीक है। और वो किसको भेजेगा? इंस्पिरेटरी सेंटर को भेजेगा। किसको भेजेगा? इंस्पिरेटरी सेंटर को, ओके। अब इससे क्या होगा? इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और एक्सलेशन होगा, ओके। तो नाउ न्यू ब्रीदिंग स्टार्ट और न्यू रेस्पिरेशन स्टार्ट। I repeat it once more. During inspiration, the lungs expand to a critical point. The stretch receptors are stimulated and impulses are sent along the vagus nerve, the expiratory center. So expiratory center will generate inhibitory impulse and sends it to inspiratory center. Okay? The inspiratory muscles relax and expiration follows. As the expiration is done, new respiration takes place. This event is known as Hering-Breuer reflex. Hering-Breuer reflex, which prevents the lungs from bursting and it also controls the depth and rhythm of respiration. Going to the next. These are the lung disorders, respiratory disorders. Give me a minute. बच्चे लोग लंग्स का डिसऑर्डर है ये सारा जो देख रहे हो ना, एम्फाइसीमिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अक्यूट ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, तुम देख रहे हो टिस वर्ड आ रहा है, लैरेंजाइटिस, निमोनिया, एस्मा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जब भी बायो में टिस वर्ड आएगा, जब भी बायो में टिस वर्ड आएगा तो समझ जाना इन्फ्लेमेशन होता है। टिस वर्ड मतलब इन्फ्लेमेशन। टिस वर्ड का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। एंड व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन क्या है? पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड फीवर। इन्फ्लेमेशन क्या है? पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड फीवर। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड फीवर। हम एक एक करके देखेंगे। ये सब बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का बीमारी या डिसऑर्डर है। एम्फाइसीमिया क्या है? यहाँ पे एल्वियोलाई के वॉल्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एम्फाइसीमिया जो है, it's a respiratory disorder in which the walls of alveoli get damaged. बच्चे लोग कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रहने दो, पेशेंट सबसे पहला क्या दिखाएगा? सांस लेने में दिक्कत, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कारण क्या है एम्फाइसीमिया का? स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन
ये सब क्या है, रीजन है एम्फाइसीमिया। तो अगर एग्जाम में हम लोग 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए बोलते हैं एम्फाइसीमिया के बारे में लिखो, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ओके, कॉज स्मोकिंग एयर पोल्यूशन, सिम्टम डैमेज टू वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, टाइम पे अगर ये ठीक हो गया, मतलब अगर बंदा स्मोकिंग छोड़ देता है या पोल्यूटेड एरिया में रहने से छोड़ देता है तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन मिड स्टेज है या तो ग्रेजुअल है तो फिर वो ठीक नहीं होगा। फिर आता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अगेन इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। किस कारण के वजह से हो रहा है, व्हाट इज द कॉज फॉर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, स्मोकिंग एयर पोल्यूशन, ओके। ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बंदा कॉफिंग, खांसी करेगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, खांसेगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ठीक है। अक्यूट ब्रोंकाइटिस में भी सेम है, देखो ब्रोंकाइटिस मतलब क्या इफेक्ट हो रहा है, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस, ब्रोंकाइटिस है ना तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस, ओके। अक्यूट ब्रोंकाइटिस वायरस और बैक्टीरिया के कारण होता है। अब ये अक्यूट ब्रोंकाइटिस में ना बच्चे लोग, इंसान जब खांसता है तो येलो कलर का म्यूकस निकलता है, येलो या ग्रीन कलर का। अक्यूट ब्रोंकाइटिस में वो जो म्यूकस निकलता है वो क्या है, येलो या ग्रीन कलर का है। इतना ठीक है, तुमने नोट किया, एम्फाइसीमिया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, कॉज एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, ओके, ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कॉज स्मोकिंग एयर पोल्यूशन, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसमें भी पेशेंट क्या करेगा, म्यूकस निकालेगा, लेकिन वो क्लियर म्यूकस है। जब वो कफ करेगा तो क्लियर म्यूकस आएगा, इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस। अक्यूट ब्रोंकाइटिस वायरस और बैक्टीरिया के कारण है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई का, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, येलो म्यूकस बाहर निकलता है जब पेशेंट कफ करे। ये तीनों एक बार ध्यान में रखो, मैं पूछूंगी। Hello students, I am talking to you. Who will speak about emphysema? अरे कुछ तो बोलो। Am I audible? Yes, ma'am. हाँ तो कुछ तो बोलो यार। Emphysema caused due to smoking or air pollution. Emphysema, breaking of alveoli as the walls of alveoli damages, or shortness in breath. Very good. Chronic bronchitis. Chronic bronchitis Caused due to smoking or air pollution. caused due to Smoking or air pollution. very nice. And the symptoms are chronic यस, bronchitis. अगर मैं तुमको बोलूँ बेटा, यस मैं तुमको बोलूँ बेटा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस आएगा तुम्हारे दिमाग में? Chronic mucus is clear, and in acute mucus is yellow in color. Very good, Pawar. Thank you for responding, child, because you are the only boy who is answering in the class. Thanks a lot. May God bless you. Kunal Shinde, what happened to you? Not interested to study? He झोपतोय? हाँ? Kunal Shinde? Are you there? Hello, ma'am. हाँ, who's this? Ma'am, Jasprit here. हाँ, बोलो बेटा। Ma'am, chronic bronchitis, please repeat करो ना second वाला. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बेटा, जहाँ पे पेशेंट क्या है, पेशेंट को दिक्कत, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस किसके वजह से हो रहा है, कॉज क्या है, स्मोकिंग एयर पोल्यूशन। सिम्टम क्या है, कॉफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सिम्टम क्या है, कॉफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अक्यूट ब्रोंकाइटिस में भी इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई का, लेकिन ये किसके कारण से हो रहा है, वायरस या फंगाई के कारण, सॉरी वायरस या बैक्टीरिया के कारण। और यहाँ पे पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिखाता है, जब वो खांसेगा ना तो बलगम निकलता है, म्यूकस, येलो कलर का म्यूकस निकलता है।
येलो कलर का म्यूकस निकलता है। ओके, अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में और अक्यूट ब्रोंकाइटिस में फर्क क्या है ये नोट करना। क्रोनिक और अक्यूट काम आएगा तुमको। क्रोनिक जो है वो कई हफ्तों से कई महीनों तक रहेगा। क्रोनिक जब भी वर्ड आएगा ना, क्रोनिक किडनी फेलियर, अक्यूट किडनी फेलियर, ऐसा कभी भी क्रोनिक आएगा ना, दैट मीन्स इट लास्ट फॉर मेनी वीक्स और इवन मंथ। जबकि अक्यूट जो है इट लास्ट फॉर फ्यू डेज और फ्यू वीक। फर्क समझा? लंबे टाइम के लिए तो क्रोनिक, छोटे टाइम के लिए तो अक्यूट। दूसरा, ब्रोंकाइटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कफ दैट इज प्रोड्यूस्ड इज क्लियर with clear mucus, whereas in acute bronchitis the cup that is produced is having yellow or green mucus. Okay, I hope that everyone has noted this 2 points. Chronic will last from few weeks to few months. Acute will last from few days to few weeks. In chronic bronchitis, the cup produced has clear mucus. Acute bronchitis, the cup produced has what? Green color mucus or yellow color mucus. Sinusitis क्या है? साइनसाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस। हमारे नाक के पीछे जो खाली जगह है उसको हम साइनस बोलते हैं। शरीर में कहीं पे भी खाली एम्प्टी स्पेस रहेगा तो हम साइनस बोले। तो हमारे नेसल चेम्बर के पीछे भी होता है खाली जगह, नेसल साइनस बोलते हैं। तो द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस इज कॉल्ड एज साइनसाइटिस, जिसके वजह से हमेशा सर्दी रहेगी, म्यूकस डिस्चार्ज। हमेशा क्या रहेगा? म्यूकस डिस्चार्ज, सर्दी रहती है ऐसे पेशेंट्स को। द रीजन इज वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी। ओके, तो अगर बैक्टीरियल है तो बंदा क्या लेगा? एंटीबायोटिक। और नहीं तो हम सर्दी के टाइम क्या करते हैं? हम विक्स का विक्स जैसी दवाई लगाते हैं, या तो फिर हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इनहेलेशन होती है। ओके, नेक्स्ट लैरेंजाइटिस। कौन बोलेगा मुझे लैरेंजाइटिस क्या होता है? तुक्का तो मार लो। लैरेंजाइटिस साउंड बॉक्स में शॉक ऑफ लाइनिंग्स। Inflammation of larynx is known as laryngitis. Very correct. Okay, inflammation of larynx is known as laryngitis. Vocal cord भी हो सकता है। तो कोई सिम्टम बोल दो, larynx inflamed है तो क्या सिम्टम होगा पेशेंट को? सोच के बोलो। larynx साउंड बॉक्स है ना, तो क्या सिम्टम होगा पेशेंट को? मैम आवाज में चेंज आ सकता है। हाँ, होरसनेस ऑफ वॉइस, आवाज थोड़ी भारी होगी, होरसनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, पेशेंट सोर थ्रोट को क्या बोलते हैं? गला दुखता है, गला दुखता है या गले में खराश जैसी होती है तो वी कॉल इट एज सोर थ्रोट। ओके, म्यूकस बिल्ट अप एंड कफ। लैरेंजाइटिस कॉज क्या है? वायरस या बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक ले लो। ओके, या फिर कोई मेडिसिन ले लो, रेस्ट ले लो, बातें नहीं करो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना ठीक है? यहाँ तक समझा? एम्फाइसीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अक्यूट ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, लैरेंजाइटिस, इतना समझा बच्चे लोग? यस मैम। थैंक यू। निमोनिया, इट्स बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई। निमोनिया में इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स तो है, लेकिन बेसिकली लंग्स में किसको प्रॉब्लम हो रहा है, किस चीज को तकलीफ हुई है? एल्वियोलाई से। तो ये माइल्ड निमोनिया भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है। Okay, the person may have cough, fever, shortness of breathing, chills, ठंडी लगेगा, sweating, chest pain, खांसेगा तो शायद ब्लड भी आएगा। तो निमोनिया डिपेंड करता है, it shows the various symptoms. Coughing, cough with blood भी हो सकता है, fever, chills, headache, fatigue का मतलब थकान, ये सब दिखाएगा। अब निमोनिया का कॉज क्या है? बेसिकली ज्यादा करके निमोनिया बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है, तो दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। ठीक है, निमोनिया सबका इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स स्पेशली द एल्वियोलाई। मे आई प्रोसीड? Yes, ma'am. यस मैम। अस्थमा।
हम इंडियंस उसको अस्थमा बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में उसको एज्मा बोलते हैं, एज्मा। ओके, तुमको जो इंग्लिश चाहिए यूज करो, वैसे भी इंडिया वाले ने इंग्लिश दिया उड़ा रहे। एज्मा, ओके, एज्मा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट समझा ना, छोटा हो जाता है, इट बिकम्स व्हाट, द डायमीटर इज वेरी लेस, उसका डायमीटर घट जाता है, तो वी कॉल इट एज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियोल्स। म्यूकस, सर्दी होती है तो नाक से कैसा म्यूकस निकलता है, बेसिकली हम इसको शेंगुड़ बोलते हैं, लेकिन वैसा ही म्यूकस हमारे ब्रोंकियोल्स में जमा होता है। तो एज्मा का पेशेंट जो होता है ना बच्चे लोग, उन लोग जब ब्रीदिंग करते हैं या खांसते एक अलग सा साउंड आता है, उसको हम व्हीजिंग बोलते हैं, व्हीजिंग साउंड। वो जब सांस लेते हैं या खांसते हैं ना तो अजीब सा एक साउंड आता है, उसको क्या बोलते हैं, व्हीजिंग साउंड। एंड द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एज्मा हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। What is the cause for asthma? Allergy. Allergy to pollen grain, allergy to some kind of food, या कोई कपड़ा, या कुत्ते का बाल, बिल्ली का बाल, ठीक है, या डस्ट, सबसे बेसिक तो डस्ट है। तो if the patient is allergic to all these things, the patient may suffer from what? Asthma. पेशेंट को जब एज्मा का अटैक आएगा, अगर किसी को भी रोड पे तुमने देखा किसी को एज्मा का अटैक आया है, तो वहां भीड़ मत जमा करो। ओके, सबसे पहली बात, हम इंडियन रुकेंगे ही नहीं, हम पहला वीडियो बनाते हैं और पूरे दुनिया में भेजते हैं, हम मदद नहीं करते, ये चीजें गलत है। अगर किसी को हमारे मदद की जरूरत है पब्लिक में, हाँ, अगर किसी का खून वून हुआ है तो जाके मदद मत करो, तभी 100 नंबर डायल करो और कट लो, ठीक है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को मेडिकल डिस्ट्रेस है और एज्मा है, तो सबसे पहली बात भीड़ मत जमा करो, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाएगा। भीड़ मतलब लोग सारे ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं और पेशेंट को नहीं मिल रहा है, ठीक है। उस पेशेंट के पास इनहेलर होगा, मुंह में जो पंप मारते हैं, ओके, वो पंप के अंदर केमिकल्स होता है, वो केमिकल क्या करेगा, ये म्यूकस को गला देगा जो ब्रोंकियोल्स में है, जिसकी वजह से पेशेंट के शरीर के अंदर हवा एंटर हो सकता है, लंग्स के अंदर हवा एंटर हो सकता है। तो एज्मा is a respiratory disorder, okay, cause क्या है, allergic to pollen grain, dust, fiber, या तो फिर hair, etc, dog hair और cat hair जो भी है, okay, symptom क्या है, constriction of bronchiole, mucus built up in the bronchiole, wheezing sound and difficulty in breathing. Doubt, किसी को डाउट है यहाँ तक? Children, if you have doubts, kindly let me know. सुनाई दे रहा है? Can you people hear me? Yes, ma'am. तो डाउट है तो उसको बोलो नहीं मैम, है मैम, तो बोलो। No, ma'am. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें आएगा सिलिकोसिस। इसमें क्या आता है, सबसे कॉमन में आता है सिलिकोसिस, ओके, एस्बेस्टोसिस, ओके। तो सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये कॉमन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। जो लोग बच्चे लोग पत्थर तोड़ने के कंपनी में काम करते हैं, या माइनिंग इसमें काम करते हैं, या तो फिर ये छत होता है, पता नहीं लोगों ने कितने जन में देखा है, घर के ऊपर जो छत लगता है एस्बेस्टोस शीट, वो बनाने की कंपनी में काम करते हैं। तो पुराने टाइम पे ना ये वर्कर्स को मास्क नहीं दिया जाता था और ये बेचारे वहीं पे तोड़ फोड़ करते थे पत्थर, एस्बेस्टोस शीट का, तो उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो हवा के साथ इनके शरीर के अंदर जाता था, शरीर के अंदर मतलब लंग्स में जाके जमा हो जाता था, और धीरे धीरे टाइम के साथ 5 साल, 10 साल, 15 साल, धीरे धीरे पेशेंट्स में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ओके। स्लोली एंड ग्रेजुअली द पेशेंट विल शो व्हाट सिम्टम्स, लाइक कफिंग। पहले तो पेशेंट कॉफिंग से चालू करता है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, ओके, और उनका लंग्स जो है वो डैमेज हो गया रहता है, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या भर गया है, सिलिका पार्टिकल, एस्बेस्टोस पार्टिकल, ओके।
तो इसके लिए आजकल ऐसे सब कंपनियों में इम्पोर्टेंट है कि वर्कर को क्या दिया जाए, प्रोटेक्टिव मास्क एंड गियर। बिना मास्क के ऐसे वर्कर काम नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? डिड यू पीपल गेट मी? Yes, ma'am. Okay, give me a minute. Then we learned that, okay, what is pulmonary ventilation? Ma'am, your screen is not visible. I am opening some other file, beta. So, what is pulmonary ventilation? Breathing. सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ने को क्या बोलते हैं हम? ब्रीदिंग। लेकिन अगर कोई इंसान बराबर से सांस नहीं ले पाता है, तो आजकल तुमको पता रहेगा उस पेशेंट को किस पे डालते हैं? Ventilator. Ventilator. Okay. So if a person is not able to breathe naturally, okay, the person is put on what? Artificial respiration, and we call it as ventilators. Okay. तो लंग्स जो काम करता है वो काम कौन करेगा? मशीन करेगा। लेट्स सी दिस वीडियो। तुमको सुनाई दे रहा है वीडियो? No, ma'am. यहाँ पे साउंड भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, हम लोग ब्रीदिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब तुम ब्रीथ करोगे तो इंटरकोस्टल मसल, रिब केज और डायफ्राम मूव करता है। दिस इज द एल्वियोलाई। ठीक है। नाउ दे आर एक्सप्लेनिंग द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई का ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आएगा। They are explaining about the diffusion of gases that takes place due to concentration gradient. अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। तो बट ऑब्वियस कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है तो क्या आएगा? ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। तो बेसिकली वेंटिलेटर्स कब यूज करते हैं? जब पेशेंट खुद से सांस नहीं ले रहा है,
या तो पेशेंट के साथ कोई सर्जरी करनी है, उस टाइम पे यूज किया जाता है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। वेंटिलेटर्स देने के पहला एक आईवी लाइन डालते हैं और एनेस्थीसिया स्लीप मेडिकेशन डालते हैं। Can you see how the machine is being put? डॉक्टर चेक करता है कि बराबर से ट्यूब डाला गया है कि नहीं। ये देख, वो बैग जो है वो ऐसा बंद चालू होगा जिससे ऑक्सीजन जो है पेशेंट के लंग्स में डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, लंग्स का एक्सरे लिया जाता है देखने के लिए कि बराबर से ट्यूब जो है वो लंग्स ट्रकिया में है या नहीं। तुमको थोड़ा बहुत आइडिया आया क्या है ये पर्टिकुलर वेंटिलेटर? देखा प्रोसीजर क्या है? आईवी लाइन देंगे, स्लीप मेडिकेशन देंगे, उसके बाद एक ट्यूब डालते हैं मुंह खोलने के लिए। ओके, उसके बाद एक्चुअल में जो वेंटिलेटर का पाइप है वो डाला जाता है और फिर मशीन जो है वो ब्रीदिंग करेगा। तो दिस इज हाउ दे एडमिनिस्टर और हेल्प आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। बंदा खुद से ब्रीथ किया तो घर वालों की नसीब, नहीं कर रहा है काफी लंबे टाइम तक किसी जो वेंटिलेटर पे पड़ा है, मतलब ठीक नहीं, ऐसा किसी के साथ ना हो। ओके, so we will continue with our PPT. Any doubt till here? जहाँ तक किसी को भी डाउट है? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। No, ma'am. थैंक यू चाइल्ड फॉर रिस्पॉन्डिंग। No, ma'am. अभी हम जो एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसको नाप सकते हैं। ओके, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वी कॉल इट एज स्पायरोमेट्री। ये सारे डेफिनेशन तुमको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मतलब अंदर लिया है, और वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड, कितना एयर बाहर छोड़ा है। ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग इज नोन एज व्हाट? एनीवन हैज अ टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन? देखो जरा तुमको ये दिया भी है क्या? नहीं तो मैं फालतू का इनका, हाँ दिया है। ओके, यू हैव वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी इस टाइम पे हम सब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, तो
कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में गया या तो फिर बाहर आया, उसको हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, जो कि बेसिकली कितना होता है 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम ऑफ एयर और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर। एक्स्ट्रा वॉल्यूम, ये शायद ज्यादा समझेगा तुमको। एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग। हम जब बोलते हैं ना किसी को धीरे धीरे लंबी सांस भरो, लंबी सांस भरो, ये फोर्स्ड ब्रीदिंग है। लंबी सांस भरो क्या है? फोर्स्ड ब्रीदिंग। ओके, ये फोर्स्ड ब्रीदिंग है। इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो 500 ml है, लेकिन अगर तुमको फोर्स्ड ब्रीदिंग करवाया जा रहा है या किसी को भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो एक्स्ट्रा एयर है ना, उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि है 2000 ml टू 3000 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम ऑफ एयर और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग, ये भी फोर्स्ड ब्रीदिंग है। आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन तो बोला जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि कितना है 1000 ml। एक बार रीड करो ध्यान से और समझने की कोशिश करो। नहीं समझा तो पूछो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। एनी डाउट विथ दिस 3 definition? Any doubt with the 3 definition? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. कौन बोलेगा मुझे टाइडल वॉल्यूम का डेफिनेशन हिंदी में, इंग्लिश में, कैसे? टाइडल वॉल्यूम का डेफिनेशन। Volume of air inspired or volume of air expired during normal breathing. वेरी गुड। कितना वॉल्यूम है बेटा टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर में? 500 ml. Good, 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 good. Now can you tell me inspiratory reserve volume? Inspiratory reserve volume. Extra volume of air. हाँ. Yes, Chaudhary. Extra volume of air that is expired during forced breathing in addition to tidal. Volume. Yes, ma'am. कितना वॉल्यूम? And it is about 2000 ml to 3000 ml. Very good. यश पवार. यश पवार. ये चाय पीने गया है लगता है. Okay. Anyone who knows the answer for expiratory reserve volume? The extra volume of air that is expired during forced breathing or forced breathing due to normal breathing. Okay. And how much volume is there? कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है? 1000 ml. Okay. Okay, ma'am. Volume of air that is present in respiratory tract, जो नेसल पैसेज हो गया या ट्रकिया हो गया, ठीक है, वहां पे जो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, बट नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में नहीं यूज हो रहा है। जो वॉल्यूम ऑफ एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेड स्पेस। क्या बोलते हैं? डेड स्पेस, जो कि लगभग कितना है? 150 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स। जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर है और डेड स्पेस में है, इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन, तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन करने के बाद भी जब वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में और डेड स्पेस में रह जाता है, उसको रेसिडुअल, रेसिडुअल मतलब बाकी, रेसिड्यू बाकी, रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि है 1100 ml to 1200 ml। total lung capacity, the maximum amount of air that the lungs can hold। हमारा lungs कितना air hold कर सकता है after a maximum forceful inspiration is known as total lung capacity। I request people to go through this 3 definitions। Okay, who will tell me the definition for dead volume? Dead volume, sorry, dead space, not volume, dead space। The volume of air.
present volume of अभी 1 मिनट बेटा, नहीं तो बोलेंगे बा मैम हमारा नाम ही नहीं लेते, ये नहीं बोलेंगे कि हम उससे जवाब नहीं देते. कुणाल शिंदे, do you want to answer dead space? निखिल, प्रगति माने, प्रतीक्षा, राम त्रिपाठी, राशि, do you want to answer? Rachel, Riya Rawat, Rohan, Yes, ma'am. would you like to answer the dead space definition? The volume of air that is present in the respiratory tract, but it is not involved in gaseous exchange. Can you tell me the volume of air of dead space? कितना volume है Rohan? Anyhow, very good that you at least answered when I called out your name. Thank you for answering. You can mute yourself. 150 ml. Very good, Rohan. It's 150 ml. Rupinder, Rishikesh Naik, Sahil Baravkar, Sairaj, Sakshi Gupta. hello ma'am. Hello, who's that? Ma'am Rupinder. Okay, can you tell me the definition for residual volume, beta? The volume of air that remains in the lungs and the dead space even after maximum expiration, 1100 milliliter to 1200 milliliter. Very good. Okay, now the last one is important, that is the vital capacity. Okay, what is it? Vital capacity. The maximum amount of air that can be breathed out after a maximum inspiration. कितना air तुम बाहर छोड़ सकते हो after a forced inspiration is known as what? Vital capacity. And the volume of air for vital capacity जो है, it is 4100 to 4600 ml. ये टोटल है, किसका टोटल है ये? टाइडल वॉल्यूम का, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का. ये 3 चीज का टोटल है. ओके, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो कितना आएगा? 4100 ml to 4600 ml. इज इट क्लियर? जहां तक समझा सबको? Yes ma'am. ओके, हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ा था. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, है ना? तो वहां पे हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन गैस. तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, हेलो, Oxyhemoglobin. आई एम नॉट. Oxyhemoglobin. Very good. Is it a stable compound or unstable compound? वो stable compound है कि unstable compound है? Unstable compound है. I think unstable. हाँ, तो जितना बनता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो टूट भी सकता है. एक चीज याद रखना, हीमोग्लोबिन जो है, इट हैज 250 टाइम्स more affinity for कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ठीक है, उसको हीमोग्लोबिन को 250 गुना ज्यादा एफिनिटी कौन से गैस के लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के लिए देन ऑक्सीजन गैस. हीमोग्लोबिन हैज 250 टाइम्स more affinity towards कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन गैस. अगर तुम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रखोगे और ऑक्सीजन गैस रखोगे तो हीमोग्लोबिन किसको चुनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को.
और वो एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? स्टेबल कंपाउंड, उसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या फॉर्म करता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब तुम मुझे बताओ, हमारे शरीर को काम करने के लिए कौन सी गैस की जरूरत है? विच गैस इज नीडेड बाय आवर बॉडी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। उसके जगह पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे तो हमारा सेल काम करेगा क्या? नो। नहीं। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है, ओके, व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है डज नॉट अलाउ द ऑक्सीजन टू बाइंड, इट डजंट अलाउ द ऑक्सीजन टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन। इतना समझा? हीमोग्लोबिन को किससे ज्यादा प्यार है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कि ऑक्सीजन से? किससे ज्यादा प्यार है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, तो उसके सामने ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड रखेंगे तो वो किसके साथ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्या बनाएगा, कौन सा कंपाउंड बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है बच्चे लोग, ठीक है, वो अभी क्या कर रहा है? इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीजन फ्रॉम बाइंडिंग। हमारे सेल को तो एनर्जी कब बना सकता है? जब उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। यहाँ तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है। तुम मुझे बोलो, ऐसे कंडीशन में पेशेंट क्या सिम्टम दिखाए? सोचो, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, पेशेंट क्या कंडीशन दिखाए? Shortness of breathing. हाँ, difficulty in breathing, shortness in breathing, okay, shortness in breathing or difficulty in breathing. So the patient will show a condition called as hypoxia. Patient कौन सा condition दिखाता है? Hypoxia. Okay, the patient will show what? Hypoxia. इसका मतलब नोट करके लो, what is hypoxia? Absence of, from those right, absence, deficiency of oxygen in the tissue, deficiency of oxygen. Oh, I am sorry. कहाँ तक सुने? हाइपोक्सिया सुने? Did you note the meaning for hypoxia? Yes, diffusion of oxygen and ma'am, हाँ, diffusion of oxygen। और क्या था? deficiency of oxygen in the tissue, deficiency of oxygen in the tissue. Okay. अब तुम लोग सोच रहे हो मैम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कब होगा? ये सुना था मैंने, क्या बोला था? When will कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग टेक प्लेस? No ma'am, no ma'am। अच्छा, आग लग गया, कई जगह पे आग लग गया, ब्लास्ट हो गया है या गलती से आग लग गया है, ठीक है, तो उस जगह पे क्या हो रहा है बच्चे लोग? आग तो बहुत जल्दी फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि द फायर इज गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। आग लग गई है तो वहां पे किस तरह का बर्निंग है? इनकम्प्लीट कंबशन है, इनकम्प्लीट कंबशन है। इनकम्प्लीट कंबशन है तो कौन सा गैस रहेगा वहां पे? कार्बन मोनोऑक्साइड। तुमने सुना होगा आग लग गई और लोग मर गए। क्यों मर गए लोग? उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। क्यों सांस लेने में दिक्कत हो रही थी? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन के बदले उनके शरीर के अंदर क्या जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और हमारे शरीर को लंबे टाइम तक ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर के सेल्स काम करना बंद कर देंगे। ओके, नाउ इन द एग्जाम दे आस्क दिस क्वेश्चन, carbon monoxide poisoning for 3 marks or for 2 marks, write a short note on carbon monoxide poisoning. So what you people will be writing, listen to me carefully. Hemoglobin has affinity towards oxygen gas. Hemoglobin has affinity towards oxygen gas, but it has 250 times more affinity towards carbon monoxide gas. It has 250 times more affinity
towards carbon monoxide gas than hemoglobin. Okay, hemoglobin readily combines with carbon monoxide forming a stable compound. ये stable है, carboxy hemoglobin. Carbon monoxide prevent oxygen from binding with hemoglobin. Okay, less availability of oxygen in the cell leads to hypoxia, due to which the patient dies. Is it clear? I repeat once more, what is carbon monoxide poisoning? Hemoglobin has affinity towards oxygen gas, but it has 250 times more affinity towards carbon monoxide gas than oxygen gas. Okay, during the time of blast or fire outbreak. Okay, in such conditions, oxygen is less available. Hemoglobin in such circumstances combines with carbon monoxide, forming a stable compound called carboxy hemoglobin. Carbon monoxide prevents oxygen from binding with hemoglobin. This leads to hypoxia and the death of the patient. अब ठीक है? Yes, ma'am. Right? हाँ. Yes, ma'am. आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एक बार पढ़ लो. दो मेन स्टेप है. पहले तो ओपन एयर पैसेज, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन होगा, या तो फिर मैकेनिकल मशीन के द्वारा, तो क्या आर्टिफिशियल वेंटिलेटर. So it is a machine that supports breathing, used during the time of surgery or treatment of severe or serious lung disorder. Function क्या है वेंटिलेटर का? To get oxygen into the lungs and to remove carbon dioxide from the lungs. बच्चों हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट खत्म किया है. अब ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना, क्या है चैप्टर का नाम? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. यहाँ पे दो चैप्टर एक साथ ज्वाइन हुआ है, एक है रेस्पिरेशन, दूसरा है सर्कुलेशन. नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलेशन चालू करेंगे, लेकिन तुम ध्यान से ये चैप्टर जो रेस्पिरेटरी पार्ट है ना, जितना भी पढ़ा है रेस्पिरेशन, वो पूरा पढ़ोगे ध्यान से. मैं सवाल करूंगी, जवाब मिलेगा. अगर मेरे क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं, मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ 10 बच्चों को समझ में आ रहा है. वो भी नहीं करूँ, 10 बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे को तो अभी तक 3 ही नाम याद हुए हैं. एक है यश पवार, दूसरा है जैस और तीसरा है चौधरी. 3 ही नाम मेरे को याद हुआ है, और एक है तिवारी. So you people read properly. Okay, in the next class we will be starting with what? Circulatory system. If you have any doubt, you can ask me right now. अगर किसी को भी कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो. मैम डेड स्पेसेस मीन? डेड स्पेस मतलब जो हवा बेटा, ये क्या बोलते हैं, इसमें बच जाता है. किसमें? हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. देखो तुम जब एक्सहेलेशन कर भी रहे हो ना बच्चे, एक्सहेलेशन कर भी रहे हो तो पूरा का पूरा एयर बाहर नहीं निकलेगा, कुछ एयर अंदर रहेगा. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो एयर बच गया है उसको हम बोलेंगे डेड स्पेस. लेकिन तुम गैसियस एक्सचेंज वाले एयर को मत गिनो, तो उसको हम बोलेंगे डेड स्पेस. ठीक है? यस मैम. और कोई हेलो. है? हाँ बोलो. हेलो मैम, वो आपने बोला कफ के टाइम पे जब भी म्यूकस जमा हो जाता है नोज या फिर कफ के टाइम मैम, हाँ तो मैम वो बोलते हैं ना कैप्सूल इनहेल करने डॉक्टर्स. क्या इनहेल करने? कैप्सूल मैम, वो ग्रीन कलर का कैप्सूल आता है ना रेस्पिरेशन के लिए. क्यों? कफ के टाइम पे कि कोल्ड के टाइम पे? सर्दी के टाइम पे? गैस
खांसी के टाइम पे या सर्दी के टाइम पे? हेलो, सर्दी के टाइम पे मैम। हाँ सर्दी के टाइम पे, हाँ बोलो, अब बोलो। मैं वो नाम देखने गई थी कैप्सूल का, मिला ही नहीं मैम। वो ग्रीन कलर के कैप्सूल आते हैं ना, वो बोलते हैं कि इसको इनहेल करो, डॉक्टर्स बोलते हैं। अभी कोरोना में बोल रहे हैं कि नॉर्मल भी बोल रहे हैं? नहीं नहीं, नॉर्मली भी बोलते हैं। बेटा एक चीज देखो, जो सर्दी है, हमको जो सर्दी होती है ना बारिश Yes, में या ठंडी में, ये सर्दी बेसिकली वायरल बीमारी है। जो कोल्ड हम बोल रहे हैं, हमको कोल्ड हो रहा है, हमको कफ हो रहा है, देखो बारिश हो गई, कभी बारिश हो जाती है या मौसम बदल जाता है, तो बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी होती है। ओके, ये क्यों हो रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ अ वायरस, और वो वायरस का नाम है कोरोना वायरस। कोरोना कोई नई बीमारी नहीं है, ये वायरस का नाम है कोरोना वायरस, जो सर्दी खांसी के लिए का कारण है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होगी उसी को होगा ये कोल्ड या तो फिर क्या बोलते हैं कफ। ठीक है, जब हमको सर्दी होती है जैस, तो क्या वो कैप्सूल लेने से तुम्हारी सर्दी चली जाती है? जैसे मुझे बुखार आया, मैंने दवाई ले ली, तो जैसे बुखार आने के बाद मैंने दवाई ले ली, 2-3 दिन तो चली गई, तो क्या सर्दी जो है वो तुरंत चली जाती है बेटा? नो मैम। नो, देयर इज नो मेडिसिन टू ट्रीट कोल्ड एंड कफ। कोई भी मेडिसिन से तुम्हारा कोल्ड और कफ ठीक नहीं हो सकता है। ओके, हम जो दवाई ले रहे हैं, विक्स वेपोरब या झंडू बाम जो भी ले रहे हैं, वो क्या करता है? वो तुमको थोड़ी देर के लिए राहत दिलाता है। तुम्हारा जो नाक जाम हो गया है, सांस लेने नहीं हो रहा है, तो उस दवाई से थोड़ी देर के लिए नाक खुल जाता है, तो यू कैन गेट फ्री ऑफ दैट डिस्कम्फर्ट। ओके, तो सर्दी खांसी ना होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अपना इम्यूनिटी हाई रखना पड़ता है। और इम्यूनिटी कब हाई रहेगा? सबसे पहली बात, हमको अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना मतलब महंगा खाने की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छा खाना मतलब जो विटामिन सी एनरिच फूड हो या लीफी वेजिटेबल हो, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ये नॉर्मल चीज है। सर्दी के लिए कोई दवाई नहीं है। सर्दी के लिए सिर्फ तुमको अपना इम्यूनिटी क्या रखना है? हाई, क्योंकि अभी कोरोना में भी वही हो रहा है। ओके, लेकिन हम जो बाकी सब करते हैं, विक्स वेपोरब Okay, लगाते हैं या नींबू बाम लगाते हैं या इनहेलेशन लेते हैं, ताकि हमको थोड़ी राहत मिले, सांस लेने की दिक्कत ना हो। ओके, आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। यस मैम, थैंक यू। वेलकम। और अगर किसी को सर्दी घर में है या खांसी है, सी वी पीपल, आई एम बेसिकली अ मलयाली पर्सन, so we people normally do perform inhalation। हम लोग इनहेलेशन लेते हैं। आज से ही नहीं, अगर तुम कोई भी मलयाली को देखोगे ना, वो सर्दी के लिए कभी दवा नहीं लेता है। इफ द पर्सन इज व्हाट क्लोज टू केरला, हम क्या करते हैं, पहले से ही एक नैरो बॉटम बर्तन लेते हैं जिसका मुंह छोटा है, वो पानी के अंदर तुलसी, काली मिर्च, सौंठ और अजवाइन के पत्ते वो डाल के उस पानी को अच्छे से उबालो, और उस पानी को हम इनहेल करते हैं। मैंने जो भी तुमको बताया, तुलसी, सौंठ, अजवाइन और क्या है, और एक तुमको बताया ना अजवाइन का पत्ता, ये सब में केमिकल्स है जो वायरस को मार सकते। तो अगर हम दिन में 3 बार ये लेते हैं तो हमारी सर्दी चली जाती है 2 दिन में। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है, आई एम ऑल्सो born and brought up in Bombay itself, but I have seen a culture in Bombay or with North Indians is that these people, they take medicine for treatment of cough, which is very wrong। क्योंकि जब तुम जैसे ही दवाई खाते हो, तुम अपने बॉडी को रेजिस्टेंट कर रहे हो उस दवाई के। ओके, तो इसके लिए ये छोटी छोटी बीमारी के लिए हम दवा नहीं लेते, क्योंकि जब एक्चुअल में बड़ी बीमारी आएगी तो ये छोटी दवाई हमारे लिए काम नहीं करेगी। तो ऑलवेज सी टू इट दैट वी ऑलवेज प्रिफर व्हाट, अभी ये टाइम पे नहीं है, ऐसे टाइम पे, कोरोना के टाइम पे नहीं बात कर रही, जब नॉर्मल हो जाएगा सब, तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है? होम रेमेडी ज्यादा इस्तेमाल करनी, 1 या 2 दिन। उसके बाद केस वर्स हो रहा है, देन वी शुड शो टू अ डॉक्टर। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। ओके मैम।